हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय ये बुक पढ़ रही हूँ और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि बुक की जो भी क्रीम है वो आपको मिल सके। और आप चाहें तो ये बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी और इसकी 6 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। तो चलते हैं आज की जो स्टोरी है। हाँ, बुक के बारे में बता दूं कि ये इसलिए है कि अगर आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी आप किसी भी तरह से अपना सुधार करना चाहते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि इसमें सिर्फ चिंता के बारे में नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ ऐसी हैं जो मैनेजमेंट के बारे में है, आपके पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में है। तो ये बुक एक बहुत अच्छी है। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो मैंने ली है यहाँ से। स्टोरी शुरू हो रही है यहाँ से, तो मैं इसको रीड करती हूँ। मिसेस येट्स इज अ राइटर ऑफ novels, but none of her mystery stories is half so interesting as the true story of what happened to her that fateful morning when the Japanese struck our fleet at Pearl Harbor. Mrs. Yates has been an invalid for more than a year. A bad heart. She spent 22 out of every 24 hours in bed. The longest journey that she undertook was a walk into the garden to take a sun bath. Even then, she had to lean on the maid's arms as she walked. She herself told me that in those days she expected to be an invalid for the balance of her life. I would never have really lived again, she told me, if the Japs had not struck Pearl Harbor and jarred me out of my complacency. When this happened, Mrs. Yates said. As she told her story, everything was chaos and confusion. One bomb struck so near my home, the confusion threw me out of bed. Army truck rushed out to Hickam Field, Schofield Barracks, and Cohen Navy wives and children to the public school. There are Red Cross telephone those who had extra room to take them in. The Red Cross workers knew that I had a telephone beside my bed, so they asked me to be a clearinghouse of information. So I kept track of where Army and Navy wives and children were being housed, and all Navy and Army men were instructed by the Red Cross to telephone me to find out where their families were. I soon discovered that my husband, Commander Robert Raleigh Yates, was safe. I tried to cheer up the wives who did not know whether their husband had been killed, and I tried to give consolation to the widows whose husbands had been killed, and they were many. 2,117 officers and enlisted men in the Navy and Marine Corps were killed and 960 were reported missing. At first, I answered these phone calls while lying in bed. Then I answered them sitting up in bed. Finally, I got so busy, so excited that I forgot all about my weakness and got out of bed and sat by a table. By helping others who were much worse off than I was, I forget all about myself. And I have never gone back to bed again except for my regular 8 hours of sleep each night. I realize now that if the Japs had not struck at Pearl Harbor, I would probably have remained a semi-invalid. I was comfortable in bed. I was constantly waited on, and I now realize that I was unconsciously losing my will to rehabilitate myself. The attack on Pearl Harbor was one of the greatest strategies in American history. But as far as I was concerned, it was one of the best things that ever happened to me. That terrible crisis gave me strength that I never dreamed I possessed. It took my attention off myself and focused it on others. It gave me something big and vital and important to live for. I no longer had time to think about myself or care about myself.
A third of the people who rush to psychiatrists for help could probably cure themselves if they could only do as Margaret Yates did. Get interested in helping others, my idea. No, that is approximately what Carl Jung said, and he ought to know if anybody does. He said about one third of my patients are suffering from no clinical definable neurosis, but from the senselessness and emptiness of their lives. To put it another way, they are trying to thumb a ride through life and the parade passes them by. So they rush to a psychiatrist with their petty, senseless, useless lives. Having missed the boat, they stand on the wharf, blaming everyone except themselves and demanding that the world cater to their self-centered desires. Now, आते हैं अब स्टोरी पे. स्टोरी है मिसेस येट्स की. मिसेस येट्स जो है एक मिलिट्री मैन की वाइफ थी, जो कि अपनी लाइफ की, और एक राइटर भी थी. वो अपने लाइफ की जो एक इंसिडेंट था वो शेयर कर रही हैं कि वो पर्ल हार्बर का एक इंसिडेंट है. अगर आपको पता होगा कि अमेरिका में पर्ल हार्बर में जापानीज ने अटैक किया था, और उसमें जैसा कि इन्होंने लिखा है कि काफी लोग जो है वो ये 17 ऑफिसर्स एंड एनलिस्टेड मैन इन नेवी, इतने लोग तो मर गए थे. 2117 मर गए थे और 960 लोग जो है मिसिंग चल रहे थे. वो अटैक जापानीज ने किया था पर्ल हार्बर पे, और ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी. और इसी से रिलेटेड जो जापान में नागासाकी हिरोशिमा में अटैक हुआ था, वो भी इसी तरह की एक ट्रेजेडी ही थी, जो आज कोई भी दोहराना भी नहीं चाहेगा, ना याद करना चाहेगा. तो अब आते हैं इन पे. तो इनका कहना ये है कि ये जो है अपने 24 घंटों में 22 घंटे बेड पे रहती थी. ये एकदम वीक हो चुकी थी. 24 घंटे में से 22 घंटे ये बिस्तर पे रहती थी. 2 घंटे ये बाहर आती थी सन बाथ के लिए, यानी धूप लेने के लिए. वो भी अपनी जो उनकी मेड थी उसके गोदी में, हाथ में किसी तरह पकड़ के लाई जाती थी. इनका जीवन एकदम खत्म हो चुका था. इन्हें नहीं लगता था ये दोबारा कभी जीना भी चाहेंगी. लेकिन हुआ यूं कि जब ये अटैक हुआ तो जितने भी विक्टिम थे वहां पे, जो मिलिट्री मैन के वाइफ्स और चिल्ड्रंस थे, उनको वहां से हटाया गया अटैक के दौरान. उनको कहीं रखा गया और अलग अलग स्कूलों में उनको भेजा गया कि वो सेफली वहां पहुंच जाएं. और वो लोग बहुत परेशान थे कि हमारे हस्बैंड्स या हमारे फैमिली मेंबर्स सब कहाँ हैं. तो उनको ये मालूम था कि ये जो है ये बेड पे ही रहती हैं और इनके पास बेड के पास फोन है. तो उन्होंने सब लोगों की इंक्वायरी के लिए इनका फोन नंबर दे दिया और इनसे कह दिया कि कोई फोन आएगा तो आप बता दीजिएगा कौन कहाँ है. तो पूरी डिटेल इनके पास. एज अ टेलीफोन ऑपरेटर ये बेड पे ही रह के काम करने लगी, क्योंकि ये और कुछ कर नहीं सकती थी. इनके बेड के बगल में फोन लगा हुआ था. तो जब सबको, और ये उसी फोन में ही इनको पता चला कि इनके हस्बैंड मिसिंग थे. उनको पता चला कि इनके हस्बैंड जिंदा हैं. तो ये और भी जो भी उनकी मिलिट्री मैन की वाइफ्स थी उनको बताने लगी कि हो सकता है कि तुम्हारे भी जिंदा हो, अभी चिंता मत करो. और उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जैसे इनके मिसिंग थे, इनको पता चला कि वो जिंदा है, तो उनको लग रहा, यही बात वो दूसरों को ही बता रही थी कि हो सकता है कि तुम्हारे भी जिंदा हो, आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो. इस तरह से ये कर रही थी. लेकिन अब इनका जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो इस अटैक का, ये कहती है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा इंसिडेंट था. भले ही वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा दोबारा हो. हुआ ये कि जब ये फोन पे वहां इंक्वायरी के लिए बात करती थी, मतलब फोन आते थे इनके पास, ये बताती थी कौन कहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया है, कोई कहाँ पे रखा गया है. तो ये लेटे लेटे बताने लगी. फिर ये इतना इन्वॉल्व हो गई उसमें कि ये धीरे धीरे बैठ के बताने लगी. और फिर धीरे धीरे बताते बताते ये खुद बेड छोड़ के चेयर पे आ गई. और ये इतना उस चीज में दूसरों को हेल्प करने में इतनी व्यस्त हो गई कि ये भूल ही गई कि ये बीमार है, ये बेड से उठ नहीं सकती हैं, इनको इस तरह की प्रॉब्लम है. और उस इंसिडेंट ने इनको बेड से उठा दिया और इनको ठीक कर दिया. तो जो मेन स्टोरी के पीछे एक
लेसन है वो ये है कि अगर हम दूसरे की मदद करेंगे, forget yourself by becoming interested in other, do every day a good deed that will put a smile of joy on someone's face। कुछ ऐसा काम रोज करो जिससे दूसरे के चेहरे पे हंसी, खुशी मिले, तो आपकी जो तकलीफें हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनका कहना ये है, एक साइकेट्रिस्ट ने बताया कि मेरे पास भी जितने पेशेंट आते हैं उनमें से 1/3 ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी है ही नहीं। 1/3 ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो मेंटली अपनी कोई न्यूरोसिस ट्रबल उनको नहीं है, वो बस अपने सेल्फलेसनेस या अपने एम्प्टीनेस, अपने अकेलेपन से, खालीपन से या विचार विहीनता से जो है परेशान है, और उनको वही चीज या कोई एम नहीं है उनकी लाइफ में, इसलिए परेशान है। अगर उनको वही चीज अपने अंदर डिस्कवर करनी है, अपने अंदर से खोजनी है, वो जिस दिन खोज लेंगे तो उनके इस तरह की प्रॉब्लम न जाने कितनी सही हो जाएंगी। जो भी होपलेस लोग हैं उनके पास कोई एम नहीं है, तो मेन है आपको कोई एम ढूंढना है, कोई ऐसा चीज करना है। नहीं आपके पास कोई है, आप बाहर कहीं उस तरह की काम करिए जिससे कि लोगों को खुशी मिले, जैसे मिसेस येट्स ने किया। और इनको पता भी नहीं चला कि ये ऐसा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ये उसमें इतनी इन्वॉल्व हो गई कि ये खुद ठीक हो गई। और ये हमेशा कहती हैं कि मुझे वो चीज कभी नहीं भूलती है, क्योंकि उसने मेरी लाइफ बदल के रख दी, उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। तो अगर कोई साइट्रिस्ट ऐसा कह रहा है कि 1/3 पेशेंट जो है वो परेशान है ही नहीं, उनको कोई इस तरह की स्टेटस से